السلام علیکم ناظرین، وائس ٹی وی اردو پر براہ راست 8 بجے کا اردو خبرنامہ لے کر میں رضوان سلطان آپ کی خدمت میں حاضر۔ اردو خبرنامہ آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں TCI میکس سیمنٹ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جموں کشمیر اسمبلی میں آج LG منوج سنہا کے خطاب پر سجاد غنی لون کی طرف سے کئی ترامیم کرانے کی مانگ کی گئی۔ وقفے سوال ختم ہونے کے بعد سجاد غنی لون اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے اور اس دوران LG کے خطاب میں 7 ترامیم کا مطالبہ کیا، تاہم ان میں سے صرف 2 کو ہی قبول کیا گیا۔ سجاد لون نے کھڑے ہو کر کہا کہ دفعہ 370 1987 کے انتخابات میں ہوئی مبینہ دھاندلیوں میں تحقیقات، پولیس ویریفیکیشن اور جموں کشمیر کے قیدیوں کے واپس مقامی جیلوں میں منتقل کرنا PSA جیسے معاملات ترامیم کا سجاد غنی لون نے ذکر کیا۔ اس دوران سجاد غنی لون کی طرف سے 370 کے معاملے پر ترمیم کے مطالبے پر اسمبلی اسپیکر نے کہا کہ NC نے پہلے ہی اس پر قرارداد منظور کر لی ہے، جس پر سجاد غنی لون نے کہا کہ اس قرارداد میں کہیں پر بھی 370 کا ذکر نہیں ہے۔ انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ وہ قرارداد ایک ایسے شادی کارڈ کی طرح ہے جس میں نہ دولہے اور نہ دلہن کا کہیں نام شامل ہے۔ ٹرن ان ایک سافٹ ویئر ہے، آپ اس ریزولوشن کو بھی ڈالیے اور میری امینڈمنٹس کو بھی ڈالیں۔ اگر وہ بولے یہ سیم ہے میں معافی مانگوں گا۔ آپ کے ریزولوشن میں تو 370 کا نام ہی نہیں ہے، وہاں تو ایپلیکیشن کا 2019 کا نام نہیں ہے، ریآرگنائزیشن ایکٹ کا نام نہیں ہے۔ آپ کا ہے کہ شادی ہے، شادی کا کارڈ ہے، نہ اس میں دلہن کا نام ہے نہ دلہے کا نام ہے۔ میں نے تو باضابطہ آپ کو 370 کا بولا ہے۔ یو کانٹ کمپیئر۔ دیکھیے آپ پڑھے لکھے آنریبل ممبر میں آپ سے بات کرو، بات کرو، یہ ان کے اور اسپیکر کے درمیان ہے، آپ کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہی میں کہنے جا رہا ہوں، سوال ہے جب ہم نے کیمپین میں تو آپ 370 بولتے تھے، الیکشن جیتنے کے بعد یہ اسپیشل سٹیٹس کہاں سے آ گیا؟ اس کی تو کانسٹیٹیوشنل ویلیڈیٹی نہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے آپ اسپیشل سٹیٹس کا مطلب کیا ہے؟ اسپیشل سٹیٹس انڈین کانسٹیٹیوشن میں جو اسپیشل سٹیٹس جموں اینڈ کشمیر کو دیا گیا تھا وہ انکارپوریٹڈ 370 میں ہے، بس 370 وہ دفعہ ہے and 35A جس کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ اب سن لیجیے نا، میں یہ انڈین کانسٹیٹیوشن میں چونکہ ہاں Special status does not mean Article 370. Special status does not cover what has been done to us on 5 August 2019. It does not cover Reorganization Act. Special status could even be a UT. Are we fighting for a UT? Special status is a very broad. مجھے بتائیے، It does not necessarily mean 370. اسپیشل سٹیٹس میرا کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ اسپیشل سٹیٹس انڈین کانسٹیٹیوشن میں دفعہ 370 اور 35A میں ہی موجود تھا اور کہیں نہیں تھا، جس پر آپ کی بحث ہوئی پیچھے۔ سنو نا، اب میری رول آپ سنیے نا، میری بات پوری بات سنو، آپ پوری بات سنیے نا، صرف یہی بات نہیں ہے، میں پوری بات سنیے۔ دیکھیے نا، میں آپ دوسرے پوائنٹ پر آتا ہوں، ذرا آپ کیوں بات کر رہے ہیں؟ آپ سنیں نا میری بات، آپ کیوں بات کر رہے ہو؟ میں ان سے بات کر رہا ہوں، اس لیے اس پر چونکہ بحث ہوئی، دوبارہ 1 سال تک اس پر بحث نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک پوائنٹ میرا یہ ہے، آج آپ سائنٹیفک ٹرن ان ایک سافٹ ویئر ہے، آپ اس ریزولوشن کو بھی ڈالیے اور میری امینڈمنٹس کو بھی ڈالیں۔ اگر وہ بولے وہیں سجاد لون نے 1987 کے الیکشن میں مبینہ دھاندلی کو لے کر ایوان میں بحث کے مطالبے جواب میں اسپیکر نے کہا کہ اسے 37 برس گزر چکے ہیں۔ پولیس ویریفیکیشن کو ختم کرنے PSA جیسے معاملے پر سجاد غنی لون نے کہا کہ نوجوان بے روزگار پڑے ہیں، انہیں سلیکشن کے باوجود نوکریاں نہیں مل رہی، جس پر اسمبلی اسپیکر نے کہا کہ یہ معاملے وزارت داخلہ کے زیر اختیار ہیں، جس کے بعد سجاد غنی لون نے احتجاجاً اسمبلی سے ہی واک آؤٹ کیا۔ یہ ایوان فیصلہ کرے گا کیا 1987 کا اگر کوئی معاملہ ہے کیا وہ ریسنٹ آکرنس ہے؟ That is not a future occurrence. That is why I have just سے باہر آ ہی نہیں رہے ہیں، ابھی تک وہی وائلنس چل رہا ہے۔ It's all linked to 87. رولز کی بات آپ کو کر رہا ہوں، لہذا یہ موشن بھی میں ڈسالاؤ کرتا ہوں۔ دو باتیں۔ تیسری بات، جی
You can use it anyway, but what is the harm in putting it in front of the house? रिसेंट अक्रंस को किस तरह आप इस्तेमाल करेंगे मुझे समझाइए It is not a matter of recent occurrence. When I say that rigging of 87 brought in violence, that those 1 lakh people who have died, sir, let me speak, sir. Honorable Speaker, sir, I want to speak, sir. Are you telling me that you don't care about the people who are in the graves? You don't want a probe? All I am saying is that if there is a probe, at least future governments will refrain and not do these things which have brought in misery and death and destruction to this place. And you are saying no. कोई भी चीज It's not recent. देखिए ना Sir, it's not recent. कोई भी चीज आप यहाँ पर ला सकते हैं हाउस में बट इट शुड बी कवर्ड अंडर रूल्स रूल मेरा स्पेसिफिकली कह रहा है कि इट शुड बी अ मैटर ऑफ रिसेंट ऑकरेंस 37 साल हो गए 87 से 37 साल के बाद आप मामला यहाँ पर उठा रहे हैं ये तो दो बातें हैं दूसरे जो आपके 1-2 मामलात हैं पब्लिक सेफ्टी एक्ट का है वेरिफिकेशन का है ये सब मामला जो हैं ये यूनियन होम मिनिस्ट्री के मातहत है ये स्टेट गवर्नमेंट के देखिए ना ये स्टेट गवर्नमेंट के मातहत नहीं है जो मामला हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं है Sir, we have gone to the court. There is not a single piece of legal evidence on the basis of which they can deny police verification because he is related to someone. It's all word of the mouth, and unfortunately it has started probably in 1996 जब आप लोग थे. खैर कोई बात नहीं, we will not go into that. We need to discontinue it now. And we can put it there that this is our intention, that our children should not be punished for something that their father has done, or their brother has done, or their cousin has done. It is primitive. How can we allow it? And how can this assembly keep quiet? Just tell me. हम कैसे चुप कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को किसी जगह सिलेक्ट होते हैं, वो मेहनत करते हैं, और आप बोलते नहीं आपके चाचे का, बेटे का, ताए का कोई जो है वो के भी गया था। उसमें तो और नहीं आया जजमेंट से, दैट्स अ सिंगल केस जो वो नहीं आया जजमेंट से। बहरहाल सर आपको नहीं सुनना है, आई वॉक आउट बिकॉज यू आर नॉट। इट विल अप्लाई टू अदर केस आल्सो। अब हो गए ये क्लोज, रीट इट एज क्लोज, हो गया मैंने रूलिंग दे दी। आई कैनॉट अलाउ इट, आई कैनॉट परमिट इट एंड स्पीकर रूलिंग इज फाइनल। अब आप खुद फैसला करेंगे, ऐवान फैसला करेगा क्या 1987 का अगर कोई मामला है क्या वो रिसेंट ऑकरेंस है? That is not a recent occurrence. That is why I have just से बाहर आ ही नहीं रहे हैं, अभी तक वही वायलेंस चल रहा है। We are, it's all linked to 87 रूल्स की बात आपको कर रहा हूँ। लिहाजा इस पर ये मोशन भी मैं डिसअलाउ करता हूँ। दो बातें। तीसरी बात जी, you can use it anyway, but what is the harm in putting it in front of the house? रिसेंट ऑकरेंस को किस तरह आप इस्तेमाल करेंगे मुझे समझाइए It is not a matter of recent occurrence. When I say that rigging of 87 brought in violence. उधर सजाद गरीलो ने वॉकआउट के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने एलजी के खिताब में 7 तरामीम की मांग की थी, ताहम इसमें सिर्फ 2 को कबूल किया गया। जिस पर हमने ये उठाया है ये मामला, सो विल कैरी ऑन फ्रॉम, इसलिए हमने वॉकआउट किया है। आज आपने वेरिफिकेशन का भी मसला वो सब मैंने, आप मेरी बात सुनिए, मैंने मसले नहीं उठाए, मैंने अमेंडमेंट्स की थी, जो कि मैंने अमेंडमेंट्स पेश की थी कि भाई ये जो गवर्नर साहब का स्पीच है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, इसमें ये ऐड कर दीजिए। तो इन्होंने जो है 7 मैंने भेजी थी अमेंडमेंट्स, 2 ऐड की हैं, 5 को रिजेक्ट कर दिया है, उन्होंने लिस्ट करने से मना कर दिया है, डिसअलाउ किया है। तो उस पर हमारी बात हुई और हमने जो है इसलिए। जैसे ही आपने 370 की बात कही तो उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो बाहर जाते हुए नजर आए, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? वो उनका अपना होस्ट स्कीइंग फिकिंग गए होंगे, वहाँ बहुत बर्फ नहीं। अब देखता हूँ अभी जो ये सारी बातें जिस पर हमने ये उठाया है ये मामला, सो विल कैरी ऑन फ्रॉम, इसलिए हमने वॉकआउट किया है। आज आपने वेरिफिकेशन का भी। उधर एनसी रुकन असम्बली सैफुल्लाह मीर ने अपने खिताब में पाक ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में बेहतर सहूलियात करार दी हैं। इस बयान पर भाजपा की जानिब से शदीद रद्दअमल सामने आया और इस बयान को हज़फ करने का मुतालबा किया है। असम्बली के बाहर मीडिया से बात करते हुए इस पर सैफुल्लाह मीर ने वजाहत पेश करते हुए कहा कि उनका मकसद पाकिस्तान की तारीफ़ करना नहीं था बल्कि अपने इलाके में सहूलियात की कमी को उजागर करना था। उन्होंने कहा कि उनका बयान किसी मवाज़ने के लिए नहीं था। ये कोई पाकिस्तान की तारीफ मैंने नहीं की है, मैंने ये कहा कि वहाँ उस एरिया में जो दिक्कतें हैं, जो तकलीफें, जो परेशानियां, उनको सॉल्व कर लीजिएगा। पाकिस्तान उधर से नज़दीक है हमारे, उनसे हमारे इलाके की हालत बेहतर होनी चाहिए, ये कोई कंपैरिजन नहीं। देखिए ये कोई पाकिस्तान की तारीफ मैंने नहीं की है, मैंने ये कहा।
उधर भाजपा मेंबर असेंबली आर एस पठानिया ने कहा कि इस बयान की जितनी शदीद मजम्मत की जाए वो कम है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क के आइन का हल्फ लेने के बावजूद ये लोग वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। उन्होंने उमर अब्दुल्ला से इस सैफुल्ला के बयान पर वजाहत तलब की कि एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा कंट्री, एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारे राजनयिक रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन तकरीबन जीरो पे है। हमारी क्रिकेट टीम ने उनके साथ चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने में मना कर दिया। हम देख रहे हैं कि पहले पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर और फिर भारत के बाकी क्षेत्रों में भी अलगाववाद को प्रमोट करना और उसकी टेरिटरी टेररिज्म के लिए प्रमोट करना, ये सब भारत नहीं कहता, इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती है। और अब उस मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर की जम्मू कश्मीर के विधानसभा में वो लोग बात करें जिन्होंने भारत के संविधान के तहत शपथ उठाई है, ये वाकई चिंताजनक है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। मैं उमर अब्दुल्ला को मांग करूंगा कि उमर अब्दुल्ला अपना स्टैंड। उधर सजाद गनी लोन की तरफ से 370 का मामला उठाने पर पठानिया ने कहा कि सियासी जमातें लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रही हैं। पठानिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस पर फैसला सुना दिया है। उन्होंने कहा कि खुसूसी दर्जे का आईन में कहीं जिक्र ही नहीं है। माननीय बेंच ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, संवैधानिक पीठ ने इस पे अपना स्टैंप लगाया है। और आपके सामने फिर दोहरा रहा हूँ, स्पेशल स्टेटस नाम की कोई भी शब्द, कोई भी आइडिया, कोई भी लीगल टर्म कभी भी एग्जिस्टेंस में था ही नहीं। ये मैं या बीजेपी नहीं, ये कानूनी पद्धति कह रही है और इस पे पूरा चैप्टर आर्टिकल 370 वाली जजमेंट में कहा। और उस 370 वाले जजमेंट देयर वाज नथिंग लाइक स्पेशल स्टेटस इन जम्मू एंड कश्मीर। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर हैड ए स्पेशल प्रोविजन दैट वाज आर्टिकल 370 और दैट व्हिच वाज टेम्परेरी, जिसको एकदम उसमें जाना था। आज उसको जाते जाते 60 के 70 साल लगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार है, इस आर्टिकल को निरस्त किया गया, जिसका वेलकम पूरे देश में किया गया, पूरी दुनिया में किया गया। तो इस विधानसभा पे इररिलेवेंट, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट विषय लेके पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में बैटिंग करने की कोशिश की पिछले सेशन में और अब सजादोन कर रहे हैं। मैंने कहा आर्टिकल 370 इज ए डेड हॉर्स एंड फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स, दिस इन इंग्लिश इडियम, डेड हॉर्स को फ्लॉग करने से कुछ लोगों का ये मुद्दा उठाने का पीछे क्या मकसद आपको? देखिए, मैंने कहा कि एक कॉम्पिटिटिव, एक कश्मीर हैज बीन ए कॉल्ड्रन ऑफ, कश्मीर में झूठ, फरेब और ढकोसले की राजनीति और ये कंपटीशन है इनमें, सबसे बड़ा झूठ कौन बोलेगा, सबसे बड़ा धोखा कौन करेगा, सबसे बड़ा फ्रॉड कौन करेगा कश्मीर के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के युवा नरेंद्र मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ और विशेषकर केंद्र सरकार की जो स्कीम्स हैं उन स्कीम से आगे चल के बढ़ना चाहते हैं। मेरा सबसे स्पष्ट अपील है कि इस स्पेशल स्टेटस और ये 370 वाली जो बात कर रहे हैं, 35 वाली बात कर रहे हैं, ये फैसला, इसको रिवोक करने का जो फैसला राष्ट्रीय इंटरेस्ट में, नेशनल इंटरेस्ट में था। और ये बात ना सिर्फ कानूनदान या पॉलिटिशियन या आम आदमी कश्मीर के गली मोहल्ला, खेत खलिहान में इस बात को समझता है, इसको सुनता है और इसको समावेश करता है। तो इस बात पे जितनी भी बातें की जाए, ना उसमें तर्क है, ना उसमें तथ्य है और ना ही उसका कोई तुलनात्मक जिसे कहते हैं कोई इसका औचित्य है। सुप्रीम कोर्ट की माननीय। उधर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा ने आज असेंबली के बाहर मीडिया से बात करते हुए बड़ा बयान दे डाला। तारिक हमीद करा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दफ़ा 370 पर फैसले के बाद अब इस वक्त स्पेशल स्टेटस ही रियासती दर्जा जम्मू कश्मीर के लिए होगा। इसका जहाँ तक ताल्लुक है, इसमें सबसे पहले क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि व्हाट स्पेशल स्टेटस आर वी सीकिंग, कौन सी पार्टी स्पेशल स्टेटस को कौन सा इंटरप्रिटेशन दे रही है। जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक है, कांग्रेस का स्टैंड बहुत क्लियर है इस बारे में कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद में अगर कोई स्पेशल स्टेटस की जो गुंजाइश रहती है वो स्टेटहुड है, तो हम अपने स्टैंड पे हैं और अपने स्टैंड। स्पेशल स्टेटस का जहाँ तक ताल्लुक है, इसमें सबसे पहले क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि व्हाट स्पेशल स्टेटस आर वी सीकिंग, कौन सी पार्टी स्पेशल स्टेटस को कौन सा इंटरप्रिटेशन दे रही है। जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक है, कांग्रेस का स्टैंड बहुत क्लियर है इस बारे में कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद में अगर कोई स्पेशल स्टेटस की जो गुंजाइश रहती है वो स्टेटहुड है, तो हम अपने स्टैंड पे हैं और अपने स्टैंड। स्पेशल स्टेटस का जहाँ तक ताल्लुक है, इसमें सबसे पहले क्लैरिटी ये होनी चाहिए। नाज़रीन, ये था उर्दू खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। अल्लाह हाफिज़।